सर। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो कौन पढ़ेगा बच्चों? सर कैन आई? हाँ, जैद से स्टार्ट करते हैं, तो जैद से ही करेंगे। जैद स्टार्ट करो बेटा। सर स्क्रीन पे सर खाली वो दिख रहा है, इलेक्ट्रल चैप्टर का नाम। सर पढ़ूं? हाँ बेटा, हाँ पढ़ो। Overview. In chapter 1, we have seen that in a democracy, it is neither possible nor necessary for people to govern directly. The most common form of democracy in our times is for the people to govern through their representatives. In this chapter, we will look at how these representatives are elected. We begin by understanding why elections are necessary and useful in a democracy. We try to understand how electoral competition among parties serves the people. We then go on to ask what makes an election democratic. The basic idea here is to distinguish democratic election from non-democratic election. The rest of the chapter tries to access election in India in the light से स्क्रीन चली गई। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, समझ नहीं Access election in India in the थोड़ा सा ऐसा क्यों लग रहा है, भरभरा रहा हूँ थोड़ा। in the light of this जी yes sir. Your voice is like somewhat breaking or something, like थोड़ा ऐसा जैसे घर घर करती है ना आवाज, वैसा इशू आ रहा है। माइक इज ऑल Yes राइट ना sir. तुम्हारा? यस सर, कल्चर हो रही है। सर पढ़ूं? ओके, हाँ बच्चा। In the light of this yardstick, we take a look at each stage of elections from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of results. At each stage, we ask what should happen and what does happen in elections. Toward the end of the chapter, we turn to an assessment of whether elections in India are free and fair. Here we also examine the role of the Election Commission in ensuring free and fair elections. एक सेकंड, अब देखो ये तो देखिए क्या होता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बेसिकली क्या है? इलेक्टोरल का मतलब होता है इलेक्शन के थ्रू चुना जाना। यस और सर। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति। तो मतलब राजनीति ऐसी राजनीति जिसमें लोग चुन करके आपको राजनीति करने के लिए भेजें। राइट, राजनीति मतलब राज्य की नीति, राष्ट्र की नीति। उस नीति माने नियम, योजनाएं, लाइक प्लान्स है ना, जैसे हमारे 5 ईयर प्लान्स है, अलग अलग और बहुत सारे हमने पढ़े थे। वो मनरेगा वाली योजना लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, या अंत्योदय योजना, ये सब पढ़े ना बेटा। तो वो राष्ट्र के लिए ऐसी योजनाएं बनाना, और कौन बनाएगा? वो लोग जो जिनको हम चुन के भेजेंगे। राइट, इलेक्शन के थ्रू आएंगे वो लोग। तो ये कहलाता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, सो नाउ व्हाई इलेक्शंस, इसके बारे में बात करेंगे। पढ़ दे बेटा एक बार, जैद तुम ही पढ़ो इसको आगे। कहां से पढ़ना था? न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट। This newspaper report is about the State Assembly
election in Haryana in 1987. The state had been ruled by a Congress party-led government since 1982. Chaudhary Devi Lal, then an opposition leader, led a movement called Nyaya Yudh, struggled for justice, and formed a new party, Lok Dal. His party joined other opposition parties to form a front against Congress in the election. In the election campaign, Devi Lal said that if his party won the election, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. He promised that this would be the first action of this government. The people were unhappy with the existing government. They were also attracted by Devi Lal's promise. So when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of Lokdal and its allies. Lokdal and its partner won 76 out of 90 seats in the state assembly. Lokdal alone won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly. The Congress could win only 5 seats. Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. The newly elected member of Legislative Assembly MLAs of Lok Dal chose Devi Lal as their leader. The governor invited Devi Lal to be the new chief minister. 3 days after the election results were declared, he became the chief minister. As soon government issued a government order waiving the outstanding loan of small farmers, agricultural laborers and small businessmen. His party ruled by state for 4 years. The next election was held in 1991, but this time his party did not win popular support. The Congress won the election and formed a new government. ओके, तो कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? सर मैं बताऊं? सबसे पहले किसने किया था? सर मैंने कहा था मनोज सर। सर मैंने बोला था, सर मैं बताऊं मनोज। चलो मनोज को एक बार मौका देते हैं। अर्नब ने भी बोला है, हालांकि अर्नब नेक्स्ट टाइम तुम बता देना, इस बार मनोज को चांस देते हैं ना। मनोज ने लास्ट टाइम भी ना तो पढ़ पाया था, ना ही उसको ठीक से एक्सप्लेनेशन का मौका मिला था। ठीक है सर बताऊं? हाँ बेटा मनोज बताओ। सर इसमें जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के बारे में बताया गया है, जो हमें ऊपर के पैरा में दे रखा है, सर इसमें हमें 1987 के स्टेट इलेक्शन जो हरियाणा में हुए थे उसके बारे में बताया गया है। तो सर इसमें एक कांग्रेस पार्टी थी जिसे चौधरी देवीलाल लीड कर रहे थे। तो उन्होंने एक स्ट्रगल फॉर जस्टिस नाम से एक मूवमेंट चलाई थी ताकि वो अपनी न्यू पार्टी फॉर्म कर सके। तो सर उन्होंने एक वादा किया देवीलाल ने कि अगर मेरी पार्टी फॉर्म हुई, जितने भी गरीब किसान या फिर स्मॉल बिजनेसमैन पे लोन है मैं उन्हें वेव आउट कर दूंगा, मतलब उन्हें पूरी तरीके से मैं हटा दूंगा, उन्हें वो लोन पे करने की जरूरत नहीं होगी। तो लोगों ने बहुत खुशी में आकर बिना कुछ सोचे उसको वोट दे दिया और लगभग वो 96 आउट ऑफ 90 सीट जीता। और उसमें से लगभग लोकदल की 60 सीट्स थी, क्योंकि वो एक तरीके से अलाइस पार्टी भी चुनी हुई थी, उसमें लगभग 60 सीट्स अकेले लोकदल की थी। तो सर उसके बाद जो देवीलाल थे उसको एमएलए जितने भी लीडर्स इलेक्ट हुए थे सबने मिलकर उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया। सर जब वो चीफ मिनिस्टर बना तो उसने जितने भी स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, उसने जो प्रॉमिस किया था उसने वो पूरा किया। और उसके जो पार्टी थे उसने 4 इयर्स तक रूल किया स्टेट को, लेकिन अगली बार वो पॉपुलर सपोर्ट नहीं जीत पाया। हाँ देखो, एक्चुअल में इसका एग्जांपल काफी अच्छे से इन्होंने बताया मनोज ने। इसमें बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बताना क्या चाह रहा है, ये हमें बताना चाह रहे हैं कि समय समय पर गवर्नमेंट जब इलेक्शन के लिए लड़ती हैं पार्टियां, तो कई बार लोगों को ऐसे वो लोग वायदे करते हैं जिसके थ्रू वो लोग खुश होकर के आंख बंद करके वोट देते हैं, वो जीत जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो लोग काम भी करते हैं। उसने बोला था कि हम वादा करते हैं कि हम आपका जो लोन है वो वेव ऑफ कर देंगे। इनफैक्ट उन्होंने किया भी था, बट स्टिल नेक्स्ट इलेक्शन जब वो आया तो उनको दोबारा से चांस नहीं मिला। राइट? यस सर।
sir. हाँ, और उनकी जगह की कांग्रेस पार्टी को दोबारा से चांस मिला। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो आगे आगे कौन पढ़ेगा? सेकंड पे कौन पढ़ने वाला था? जैद के बाद कौन पढ़ता है हमारा? ज्योत्सना। Yes, sir. हाँ, ज्योत्सना पढ़ो बेटा। सर आपकी स्क्रीन तो चेंज ही नहीं हुई। मेरी स्क्रीन पे चेंज नहीं है मतलब? सर दूसरा पेज सर नीचे नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि नेटवर्क की वजह से ना बहुत ज्यादा स्लो या फिर ऐसे चलता है। यस सर। सर आ गई इसकी। मैं बहुत पहले क्लिक करता हूँ और बहुत बाद में आपको विजिबल होता है चीजें। सर रीड करूं? हाँ जी बेटा, पढ़ो। Why do we need elections? Elections take place regularly in any democracy. There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. But why do we need elections? Let us try to imagine a democracy without elections. A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions. But as we have already seen in chapter 1, this is not possible in any large community. Nor it is nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters. Therefore, in most democracies, people rule through their representatives. Is there a democratic way of selecting representatives without elections? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience, or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. There could be same there could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable. But let us say the people can resolve these difficulties. Clearly, such a place does not require election. But can we call this place a democracy? How do we find out if the people like their representatives or not? How do we ज्योत्सना, ensure that it's not yes, people, it's people. yes, people? हाँ, क्योंकि सब लोग बच्चे ध्यान रखिए, प्यूपिल बेटा होता है स्टूडेंट, शिष्य। स्टूडेंट। यस सर। ओके सर। राइट, उसकी स्पेलिंग होती है PUPIL। ठीक है। Okay, sir. How do we find हाँ, और out? ये है पीपल। पीपल माने लोग, व्यक्ति। How do we find out if the people like their representatives or not? How do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people? How to make sure that those who the people don't like do not remain their representatives? This requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called elections. Therefore, elections are considered essential in our time for any representative democracy. In an election, the voters make many choices. They can choose who will make laws for them. They can choose who will form the government and take major decisions. They can choose the party whose policies will guide the government and lawmaking. सर आगे पढ़ूं? नहीं बेटा, एक बार इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अर्नव, यस सर। तुम जो बोला था यस ना? सर। यस सर। सर एक्सप्लेन करूं? हाँ बेटा, एक बार। यस सर। सर तो ये जो पैराग्राफ है ये बेसिकली इस क्वेश्चन से डील करता है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। ये तो हमने पिछले कई सारे चैप्टर्स में और पिछले कई सारे टॉपिक्स में पढ़ा है कि इलेक्शंस होते हैं जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। इलेक्शंस होते हैं जहाँ पे जो इलेक्शंस है वो मेनली डेमोक्रेसी से एसोसिएटेड है, लेकिन इसका मेन कॉज हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। तो जो इलेक्शंस होते हैं इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल दिया है कि सपोज
ये तो हमें पता है कि किसी भी प्लेस पे इतनी कम आबादी तो नहीं है कि सब लोग साथ में बैठकर सारे डिसीजंस कर ले। ऐसा बहुत ही छोटे लेवल पे पंचायत जो होते हैं या फिर बहुत ही छोटी सिटीज में हो सकता है, लेकिन किसी बड़ी कंट्री को गवर्न करने के लिए ये एक इफेक्टिव मेथड नहीं होगा। तो उस केस में जो है पीपल उनके पास उतना कैलिबर भी नहीं होता कि वो बैठ के सारे डिसीजंस ले, तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का तरीका आया। तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम चुने कैसे? तो इसके लिए कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि एज हो गया या फिर जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है या ज्यादा नॉलेज है। तो फिर जब हम ये सारे फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं तो हमें इलेक्शंस की क्या जरूरत है? तो इलेक्शंस की हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर हम ये सारे फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वो अपने आप को रूल में आते ही डिक्टेटरशिप स्टार्ट करते हैं, वो डेमोक्रेसी में मेंटेन ही नहीं करना चाहता है। तो वैसी जगह को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह पाएंगे। इसलिए एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को रन करने के लिए इलेक्शंस की उसकी बैकबोन होती है। और इसके बाद फिर यहाँ पे 3 मेन पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। एक तो ये है कि जिनको हम उन लोगों को चूज करते हैं जो कि हमारे लिए डिसीजन बनाए, मेजर डिसीजन टेकर्स। सेकेंड, उन लोगों को जो कि हमारे लिए लॉज बनाए, जैसे हम एमपीज का एग्जांपल ले सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके जाते हैं। और लास्टली वो लोग जो कि गवर्नमेंट को गाइड करे। अच्छा, ओके। इसको एक चीज हमें समझना होगा थोड़ा सा यहाँ पर कि इलेक्शन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं ये बात तो है ही कि जो रोटेशन होता रहे किसी भी व्यक्ति के अंदर ये चीज ना आए कि भाई हम लोग राजा बन गए हैं, इस तरह की चीजें उनको पता होना चाहिए कि कभी कभी हमारी जॉब जो हमारी पावर है वो हमसे छीनी जा सकती है। लेकिन साथ के साथ आपको एक बात बताता हूं कि जब पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो रही थी और मिस्टर जवाहरलाल नेहरू उसको लीड कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, तो उनसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है, क्या हमारा पार्लियामेंट पावरफुल है या ये कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल है? तो उन्होंने कहा कि दोनों की अपनी अपनी पावर्स हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पावरफुल है, पार्लियामेंट से ज्यादा पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उनसे पूछा गया तो सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है फिर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा पावरफुल है? तो उन्होंने कहा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है वो आम आदमी के अंदर बसती है, और इसीलिए सबसे ज्यादा पावरफुल इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या फिर इस डेमोक्रेसी में, इंडिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? वो आम आदमी है, वो लोकल पीपल, जो नॉर्मल आदमी है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है हमारी कंट्री में, राइट? यस सर। यस सर। तो इसको थोड़ा सा समझने के मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और मेरे हिसाब से शायद कुछ जगहों पर उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस भी लिए हैं, हालांकि कुछ खराब भी लिए, तो वो एक अलग रीजन है, वो अलग विषय है, उस पर हम कभी और देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं ये बात कर सकता हूं कि हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे अच्छी खासी पकड़ थी जवाहरलाल नेहरू की, और उन्होंने जो ये बात कही कि आम आदमी के अंदर सबसे ज्यादा पावर है, तो और कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है वो एक आम आदमी के दिल में निहित करती है, दिल में रहती है। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात से एग्री करता हूं कि इंडिया में द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी इज द नॉर्मल पीपल। और वो क्यों है? क्योंकि उसके पास ये वोट करने की पावर है। वो हर बार, हर एक अल्टरनेटिव इलेक्शन पे, या हर एक इलेक्शन पे, बल्कि अल्टरनेटिव नहीं, हर एक इलेक्शन पे वो किसी को भी वोट आउट कर सकते हैं, राइट? और आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे कि आप देखिए, जो जितने भी ये क्या बोलते हैं इनको, छोटे मोटे सीरियल्स नहीं चलते रहते हैं, तो उसमें हमको क्या करना होता है, हम उसमें देखते हैं कि भाई वो लोग कहते हैं कि जनता हमारी सबसे ज्यादा वो है, हमें वोट करेगी, हमें बचाएगी, ये करेगी, वो करेगी। तो एक्चुअल में वो यही है कि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि जो वोट कर सकता है वो तुम्हें वोट आउट भी कर सकता है, राइट? यस सर। ठीक है, तो यही इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये एसेंशियल क्यों है हमारे टाइम में? अगर हम देखें तो इसके पीछे ऑप्शंस, ये मैनी चॉइसेस मिल जाती है। क्या क्या है? दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम,
यानी वो लोग ये चुन सकते हैं कि कौन उनके लिए कानून बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम देखें तो फार्म लॉज के ऊपर काफी बहस चल रही है, या इससे पहले वो CAA के ऊपर काफी बहस चल रही थी, या उससे पहले आर्टिकल 370 के एब्लिगेशन के ऊपर चल रही थी, या उससे पहले ट्रिपल तलाक के ऊपर चल रही थी, या उससे पहले सर NRC। हाँ NRC तो खैर अभी नहीं है, वो तो बाद में आएगा, आएगा नहीं आएगा तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग के पास ये पावर है कि अगर हम चाहें तो उस गवर्नमेंट को पावर में रखें, उस पार्टी को पावर में रखें जो हमारे हिसाब से काम कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये चाहता हूं कि भारत में हर एक आदमी के पास एक साइकिल हो, और ऐसा कानून बनाने वाली गवर्नमेंट को मैं वोट करूंगा, तो मैं उसे वोट करूंगा। और अगर मेरी बात से बहुत सारे लोग, मेजोरिटी जो है वो सहमत होती है कि हाँ भी साइकिल सबके पास होनी चाहिए, राइट, तो उसको वोट करेंगे और वो जीत जाएंगे। जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल देखा ताऊ देवीलाल यस का, सर। उन्होंने बोला हम लोन वेव ऑफ कर देंगे, लोग खुश हो गए, लोगों ने वोट कर दिया उनको, राइट। यस सर। सर दिल्ली में भी तो हुआ था सर, केजरीवाल जी ने सर बिजली सस्ती करने का किया था। बिल्कुल। तो एक्चुअल में बस यही है, ठीक है। ओके सर। अच्छा एक चीज और है, हम लोग के पास क्या होता है, इलेक्शन से पहले हर एक पार्टी अपना ये डिक्लेयर करती है एक परफॉर्मा कि हम ये इस पे काम करेंगे, ठीक है। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो बोलते हैं, वेरी गुड से शाबाश, मैनिफेस्टो बोलते हैं उसको। तो उसमें ये सब लिखा रहता है कि हम ये वाली ये पॉलिसीज बनाएंगे, ये पॉलिसीज हटाएंगे, ये नई चीजें करेंगे, ये पुरानी चीजें आगे ले जाएंगे, और ये चीजें हम खत्म कर देंगे या ये चीजें शुरू कर देंगे। तो वो सारी चीजें उसमें लिखी होती है, तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि हम अगर इसको वोट करेंगे तो ये चीजें होंगी, उसको वोट करेंगे तो वो चीजें होंगी, राइट। यस सर। यस सर। तो यस सर। इसी से Yes, थोड़ा सा sir. देखते हैं। चलिए, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कौन है नेक्स्ट, कौन पढ़ेगा? तो मैं ही पढ़ रही हूँ। ज्योत्सना अभी अभी तुम थोड़ा सा वेट कर लो बाबू, और लोगों से थोड़ा थोड़ा पढ़वा दें। यस सर। B1 के बच्चों से एक बार पढ़वा दें, फिर उसको देखते हैं। कृष तुम भी तो B1 में हो ना? यस सर। ठीक है, कृष पढ़ेंगे, उसके बाद वैभव, है ना? और कोई Yes, B1 sir. में रह जाएगा तो बता देना। What makes an election democratic? Elections can be held in many ways. All democratic countries hold elections, but most non-democratic countries also hold some kind of elections. How do we distinguish democratic elections from any other election? We have discussed this question briefly in Chapter 1. We discussed many examples of countries where elections are held but they can't really be called democratic elections. Let us recall what we learned there and start a simple list of the minimum conditions of a democratic election. First, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one right, have one vote, and every vote should have equal value. Second, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. Third, the choice should be offered at regular intervals. सर इसमें तो फर्स्ट ही पॉइंट दिख रहा है बस। Elections must be held regularly after few years. Fourth, the candidate preferred by the people should get elected. Fifth, the elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. These might look like very simple and easy conditions, but there are many countries where these are not fulfilled. In this chapter, we will apply these conditions to the elections held in our country to see if we can call these democratic elections. Is it good to have political competition? Elections are thus all about political competition. This competition takes various forms.
The most obvious form is the competition among political parties at the constituency level. It takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, selection will become pointless, but it is good to have political competition. Clearly, an electoral competition has many demerits. It creates a sense of disunity and fact, facti, analyzation in every locality. You would have heard people complaining of party politics in your locality. Different political parties and leaders often level allegations against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term politics to be formulated. Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. Our constitution makers were aware of these problems, yet they opted for the free competition in election as the way to select future leaders. They did so because this system works better in the long run. In a in an ideal world, our political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. They want to remain in power or get power and positions themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. How do we deal with this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. The other and the more and realistic Realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded rewarded for for serving the serving people. for rewarding for the serving of people and punished for not doing so. Who decides the reward or punishment? The simple answer is the people. This is what electoral competition does. Regular electoral competition provides incentives to the political parties and leaders. They they know, they know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and the chances of victory will increase in next the elections. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will be not able to win again. So, if a political party is motivated only by desire to be in power, even it will be forced to serve the people. This is a bit like the way markets work. Even if a shopkeeper is interested only in profit, he is forced to give a good service to the customers. If he does not, the customer will go to some other shop. Similarly, political competition may cause divisions and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the country, serve the people. What is our system of बस election? बेटा, बस बस बेटा, बस थोड़ा बाकी ये सब समझने तो दे। इतना इतना तूने दो तीन तरह वो पढ़ दिए हैं सब Yes, टॉपिक्स। sir.
चलिए कौन बताएगा? समय है। अर्नव ने तो बताया था, मानस, मानस से ट्राई करते हैं। चलो मानस, तुम पहले तुम ये वाला बताओ, व्हाट मेक्स इलेक्टर ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ओके सर। सर इसमें हमें बताया गया है कि इलेक्शंस जो हैं वो बहुत सारे तरीके से किए जा सकते हैं। सर दो तरीके तो यही है कि एक बैलेट पेपर हो गया, और सर एक हमारा जो हम ईवीएम मशीन यूज़ करते हैं वो हो गया। सर उसी तरीके से सर बहुत सारे वेज में हम इलेक्शंस करा सकते हैं। सर जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है सारी की सारी इलेक्शंस होल्ड करती हैं, लेकिन सर जो कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है वो भी इलेक्शंस मतलब वो भी अपने वहाँ इलेक्शंस रखवाती हैं। तो फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये जो दोनों इलेक्शंस हैं इनमें क्या डिफरेंस है? और सर हम इसमें ये भी पता करने की कोशिश करते हैं कि सर जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो क्यों इलेक्शन कराती हैं। सर उनका मेन इलेक्शन कराने का मोटिव ये होता है कि वो अपने जो उनके वोटर्स हैं उनको मतलब उनको वो सेटिस्फाई कराना चाहते हैं कि हम वोटिंग करा रहे हैं, हम डेमोक्रेट्स हैं, वो चाहे नहीं है उसके बाद भी वो उन्हें स्पेसिफाई करते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सर ये एक मेन रीज़न है। और उसके बाद सर हम ये देखते हैं कि जो किसी भी कंट्री के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक होने के लिए मेन क्या कॉजेज हैं। सर इसके लिए 5 मेन रीजंस हैं जो कि होने चाहिए तभी एक कंट्री के इलेक्शन डेमोक्रेटिक होंगे। फर्स्ट सर, everyone must be allowed to choose. Means sir that कि every person should have one vote and each vote should have one value. सर ये इसका मेन मोटिव है। और सेकंड है there should be something to choose from. सर इसका मतलब ये है कि सर अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे तो सर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो सर पीपल के पास चूज करने के लिए चीज़ें होंगी जिससे वो चूज कर सके। तो सर ये भी होना बहुत ज़रूरी है। और सर थर्ड है सर द इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड इन रेगुलर इंटरवल। सर जैसे 5 साल बाद 4 साल बाद इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। और जो कैंडिडेट लोगों को पसंद आता है वही कैंडिडेट इलेक्ट होना चाहिए एज अ लीडर और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी और एनी प्लेस। और सर जो फिफ्थ है इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट कराना चाहिए। सर मतलब जैसे कि जो पैसे देके जीत गए सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेन हमारे रीजंस हैं। और सर ये लगते तो है बहुत इजी कंडीशंस हैं, बट सर बहुत सारी कंट्रीज सर इसको नहीं कर पाती है अपने वहाँ फॉलो। इसलिए हम कंट्रीज को कहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है और यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होता। सही है। एक चीज इसमें थोड़ा सा और याद रखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स थोड़े से और समझ लेंगे, ठीक है। और एक चीज में जरा सी याद रखेंगे कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, वो जब इलेक्शन करवा रहे होते हैं तो उन्हें पता होता है कि जीतेंगे तो हम ही। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो चाइना को अगर हम लें, चाइना इज अ कंट्री जहां पर वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। यस सर। तो उस पार्टी में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई अगर 10 लोग भी खड़े हुए हैं तो जो भी जीतेगा उनमें से तो वो रहेगा तो उसी पार्टी का ना, पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना जो भी है वो। यस सर। ठीक, यस सर। तो जब वो जीतेगा तो वो आफ्टर ऑल कौन उसका लीडर है? शी जिनपिंग। तो जिनपिंग को यस ही सर। सपोर्ट करेगा अपना वोट आगे देने के लिए कि भी हमारे प्रेसिडेंट ये रहे, ठीक है। तो वो इलेक्शन कैसे भी हो कुछ भी हो जीतना उसी को है। इसीलिए कई बार हम लोगों को आपने ऐसा सुना होगा कहते हुए किसी को कि जो चाइना में जो वहां के प्रेसिडेंट हैं उनको लाइफ टाइम के लिए चुन लिया गया है। ऐसा सुना आपने किसी ने? यस सर। हाँ, तो वो एक्चुअल में चुना क्या गया है, वहां पर सिस्टम ही वन पार्टी है। तो चाहे कोई भी कितना भी कुछ भी हो जाए वो उसी व्यक्ति को रहना है वहां का प्रेसिडेंट जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, या फिर ऐसा कोई पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं हो जाता कि वहां पर वन पार्टी सिस्टम ही खत्म हो जाए, तब तक के लिए तो वही है, ठीक है। चलो एक बार लव्य, लव्य है, लव्य लव्य डू यू हियर मी? सर मैसेज तो कर रहा है सर, आपकी आवाज नहीं सुन रहे थे। हाँ वही मैं लव्य,
अर्नव, एक बार पहले मैं और लोगों को मौका दे दूं, फिर तुमको चांस देना ही है। नारायण, सर मैंने भी अभी रीड नहीं किया। हाँ सर मैंने भी नहीं किया। पढ़ने के लिए, हाँ पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, एक्सप्लेनेशन के लिए बात कर रहा हूँ, अभी रुको। नारायण, यस सर। ठीक है, एक बार जरा ये जो अपना हेडिंग है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, जरा इसके बारे में बताओ। यस सर। सर ये जो टॉपिक है सर, इसमें हमें बताया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो सही है कि मतलब सर किसी काम का है कि बिना काम का ही ऐसे है। तो सर जो इलेक्शंस है वो सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन पे ही बेस्ड है। मतलब एक पार्टी चाहती है कि वो जीत जाए, वो पावर में आ जाए, और दूसरी चाहती है कि वो उससे जीत जाए। तो सर मतलब कंपटीशन तो अब अलग अलग तरीके से होता है, और सही इलेक्शंस में भी डिफरेंट टाइप्स के कंपटीशंस होते हैं। सर इसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है। सर सर तो सारे जो कैंडिडेट्स हैं इनके बीच में कंपटीशन होता है। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो सर इलेक्शन का कुछ काम ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि सर इलेक्शन इसी तरह से डिजाइन किया गया है, मतलब उसको किया गया है कि कंपटीशन हो और एक पार्टी चाहे कि वो दूसरे से बेस्ट, मतलब अपना बेस्ट दे ताकि उसी को पीपल चुने। उसके लिए वो आपस में कंपटीशन करेंगे और पीपल का इसमें बहुत प्रॉफिट होगा। सर मेरी वॉइस शायद से एको कर रही है। मुझे तो थोड़ी थोड़ी क्लियर आ रही है, बाकी बच्चों का पता नहीं। सर आपके माइक से शायद एको कर रहा है। यस सर, एको हो रही है आपकी माइक। मेरी तरफ से एको हो रही है, मैं अपना माइक ऑफ कर देता हूँ। ये लो, अब पढ़ो नारायण, अब बताओ। यस सर। जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसके कई सारे डीमेरिट्स भी हैं और मेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स जैसे ये डिसयूनिटी का एक सेंस क्रिएट कर देता है। मतलब सर पार्टी के लोग कभी कभी आपस में लड़ जाते हैं जीतने के लिए, या फिर दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज वो जीतने के लिए मतलब उनके बीच में डिसयूनिटी फॉर्म हो जाती है। सर ये फैक्शनलिज्म क्रिएट करता है आपस में, मतलब सर पार्टी के बीच में फैक्शनलिज्म हो जाता है। सर पार्टी पॉलिटिक्स को ये सर लीड करता है। सर मतलब एक पार्टी चाहती है कि वो ही जीते दूसरी पार्टी हरा के, या मतलब सर डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं। सर तो पार्टी पॉलिटिक्स का भी इसका एक डिमेरिट हो सकता है। और सर जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं सर, वो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को सर नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। सर वो मतलब प्रूफ अगर हो तो ठीक है, वरना ज्यादातर लीडर्स जो होते हैं वो बिना प्रूफ के ही कुछ भी सर किसी दूसरे लीडर को नीचा दिखाना चाहते हैं ताकि वो जीत जाए और वो हार जाए, या फिर सर वो पॉलिटिकल पार्टी मतलब वो पूरा पार्टी ही इलेक्शन जीत जाए। और सर जो कुछ अच्छे लोग होंगे जो पॉलिटिकल पार्टी से कंट्री को मतलब सर अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, सर वो इसमें ये सोच के नहीं आएगी कि उन्हें घसीट लिया जाएगा। मतलब उनके लिए सर बहुत नुकसान होगा इसमें, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स है और वो लोग तो मतलब सर उतने खराब है नहीं कि वो इन सबको मतलब सर ये इन जैसे ये करते हैं वैसे ही वो भी कर सकें। सर तो उनके लिए भी एक मतलब खराब हो जाएगा, इसलिए वो भी ये सोच के नहीं आते हैं पॉलिटिक्स में। सर तो पॉलिटिक्स में जो मतलब हमें चाहिए जैसे लोग, वो लोग ये सोच के नहीं आते हैं कि इसमें उन्हें घसीट लिया जाएगा। तो सर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, सर उन्हें इस बात का पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कंपटीशन करवाया ये सोच के कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को हरा के उल्टा लोगों का ही भलाई करेगा ताकि वो अपना बेस्ट देगा और उससे पीपल का ही प्रॉफिट होगा। जैसे सर ये और इसका मेरिट जो है हमारा, सर ये हो सकता है कि ये लॉन्ग रन में सर बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। मतलब सर अगर कोई पार्टी 5 या 6 साल के लिए अगर रूल कर रहा है तो वो बहुत प्रॉफिट हो सकता है, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा उसके बाद। और सर ये जो है इसमें पीपल का ही एक तरह से प्रॉफिट इस तरह होगा कि सर जैसे दुकानदार मतलब अगर कस्टमर को नहीं नहीं भी सस्ते दाम पे देना चाहता है फिर भी उसे देना पड़ेगा, ये सोच के कि वो दूसरे दुकान पे ना चला जाए सामान खरीदने के लिए, ताकि उसका लॉस ना हो जाए, इसलिए वो अपना मतलब सर सस्ते दामों पे देगा। और सही पॉलिटिक्स भी है
एक पार्टी अच्छा यस करेगा सर। ताकि जो पीपल हैं वो दूसरे पार्टी को वोट ना कर दें। सर इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने यही बात सोच के इलेक्शन को ही बेस्ट माना, और वो भी फ्री इलेक्शंस को मतलब सबसे बेस्ट माना, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हो जिसमें हो। यस सर। सर एक हेल्दी ओपोनेंट होना चाहिए सर, कंपटीशन नहीं होगा तो सर उनके ऊपर नहीं होगा, वो बात बात पे रूल करते रहेंगे क्योंकि दूसरी पार्टी को इसी कभी आएगी ही नहीं पावर में, और नए नए नहीं पता चलेंगे कि क्या हो सकता था सर। डेमोक्रेसी में टाइम लगता है पर अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं। देखो एक चीज और है साथ के साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि जो क्या कहते हैं जो डेमोक्रेसी में जो हेल्दी कंपटीशन हो रहा है ना, उसमें एक छोटी सी चीज और है कि उसी कंपटीशन में बने रहने के लिए लोग बाग उल्टे सीधे वादे भी करते हैं, राइट? कि हम यस तुमको सर। 5 मंजिला घर बना देंगे, हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको वो कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी हो रहा है। सिर्फ हम फायदा देख रहे हैं, वो फायदा नहीं, साथ में नुकसान भी है। यस लेकिन सर, कहीं ना होप्स कहीं तो हो देखा रहे जाए जितना नुकसान हो रहा है उससे थोड़ा ज्यादा जो है वो फायदा हो रहा है। लोगों के दिमाग में ये बात जरूर है कि भैया इस चीज में थोड़ा इतना पैसा जा रहा है हमारा, लेकिन उनके दिमाग में ये बात भी है कि अगर इससे डेमोक्रेसी नहीं होती और कोई और तरह का जो अपना मोनार्क होता है या कुछ होता, तो उससे ज्यादा पैसा तो हमारा वैसे ही चला जाता। ठीक है, तो कहीं ना यस कहीं हमें फ्रीडम तो मिल रही है हमको, वरना तो अगर हम मोनार्क में रहते या फिर डिक्टेटरशिप में रहते तो वहां तो पैसा भी जाता और फ्रीडम भी जाती। यस सर, सर फैक्शनलिज्म क्या बात में होता है? सिर्फ लॉस ही हो जाता। बच्ची क्या बोल रही है? क्या बोल रहे हो बेटा? सर फैक्शनलिज्म क्या होता है? कहाँ पर लिखा है मेरा बेटा? कहाँ पर है बच्चा? सर डीमेरिट्स में लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। पेज नंबर और पैराग्राफ नंबर बताओ मेरे सर को, ऐसे पेज दिख नहीं नंबर रहा था। 37 ही है सर, इन्वर्टेड कॉमर्स पैराग्राफ में कौन सा? लिख रखा है ना पैराग्राफ नंबर सर। इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन का सेकंड पैराग्राफ 4th और 5th लाइन में देखिए। अच्छा ओके ओके, ठीक है, मिल गया। ये है ना, इट क्रिएट्स सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी, ये पूछ रहे हो ना बेटा? यस सर। हाँ, फैक्शनलिज्म बेटा होता है कि जब बहुत सारी पार्टियां मिलकर के वो उस तरह से एक गुट टाइप बना लेती हैं। सर इसका मतलब मतलब कि ये भी, जैसे, हाँ बोलो। सर इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि कोई अगर मतलब सर पॉलिटिकल पार्टी है सर, उसी में डिफरेंट ग्रुप्स बन जाए सर, कोई किसी आदमी को सपोर्ट कर रहा है और कोई किसी को, सर किसी एक ही पॉलिटिकल पार्टी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये सही बोल रहे हो एकदम बेटा। इसमें एक्चुअल में दोनों ही तरह से देखा जा सकता है इसे, कि दो अलग पार्टीज मिलकर के एक गुट बना ले रही हैं, या फिर एक ही पार्टी में दो अलग अलग गुट बन गए हैं। जैसे हमने बीच में देखा कि समाजवादी पार्टी एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में, जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। आप लोग जानते होंगे, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी की पार्टी है। यस सर।
उसमें गुट बन गए थे, कुछ लोग मुलायम सिंह यादव जी की तरफ से थे, कुछ लोग अखिलेश यादव की तरफ से थे, इस तरह कैसे उसमें भी गड़बड़ हो गई थी। यस सर। फिर जैसे रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे सोशल डेमोक्रेट बोल्शेविक्स से मेनिसेविक्स में बढ़ गए थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर ये चलिए आगे फ्रैक्शनलिज्म बढ़ेंगे। होता है कि फ्रैक्शनलिज्म होता है? FRA या फिर FA खाली? नहीं नहीं, फैक्शनलिज्म ही है बेटा, वो फ्रैक्शन अलग है, ओके सर। वो अलग है, ये अलग है। यस सर। वो तो एक तरीके से टकराव की स्थिति है, यहाँ पर अभी टकराव हुआ नहीं है, सिर्फ दो पार्ट्स में बट गया है। ओके सर। चलिए, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारे इंडिया में इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट किसका नंबर था? वैभव। ठीक है वैभव, जरा पढ़ के बताओ। Can we say that Indian elections are democratic? To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. Lok Sabha and Vidhan Sabha assembly elections are held regularly after every 5 years. After 5 years, the term of all the elected representatives come to an end. The Lok Sabha or Vidhan Sabha stands dissolved. Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is called a general election. Sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called a by-election. In this chapter, we will focus on general election. Electoral constituencies. You read about people of Haryana electing 90 MLAs. You may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote for all the 90 MLAs? You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system of representation. The country is divided into different areas for purposes of election. These areas are called electoral constituencies. The voters who live in an area elect one representative. For Lok Sabha election, the country is divided into 543 constituencies. The representative elected from each constituency is called a member of parliament or an MP. One of the features of a democratic election is that every vote should have equal. सर नीचे स्क्रॉल कर दीजिए. One of the features of a democratic. Yes, sir. One of the features of a democratic election is that every vote should have equal value. That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it. Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies. In this case, the elected representative is called a member of legislative assembly or an MLA. Each parliamentary constituency has within it several assembly constituencies. The same principle applies for panchayat and municipal elections. Each village or town is divided into several wards that are like constituencies. Each ward elects one member of the village or the urban local body. Sometimes these constituencies are counted as seats, for each constituency represents one seat in the assembly. When we say that Lok Dal won 60 seats in Haryana, it means that candidates of Lok Dal won in 68 assembly constituencies in the state, and thus Lok Dal had 60 MLAs in the state assembly. तो अब इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? मनोज नहीं बेटा, मोक्षिका।
अच्छा ओके, यू हैव अ नेटवर्क इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट अ प्रॉब्लम बेटा, डोंट से सॉरी, नो वरी। प्रणव प्रणव अग्रवाल। भूमिका। कृष्णा। यस सर। चलो एक बार जरा तुम बताओ, करोगे ट्राई? यस सर। ओके बताओ। सर हमें इसमें ये बताया है कि सर ऊपर कर दीजिए सर, मैं थोड़ा नेटवर्क में बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सर, ऊपर वाला ये वाला पूरा पता है। तो रूम रहने दो, फिर बाद में बताना, नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ बताना। ये जो बच्चा है मोहम्मद साजिद के नाम से, ये क्या नाम है इस बच्चे का? और मोहम्मद जुनैद। हम्म, जुनैद। मयंक। युक्ति। सर कैन आई रीड लव इट? बेटा अभी रीडिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी तो एक्सप्लेनेशन की बात चल रही है, रुक जाओ। ठीक है। युक्ति। यशवी शर्मा लेफ्ट द मीटिंग। नंदिनी। चलो एक बार नारायण को ही बोलते हैं। नारायण तुम बताओ बेटा, इन लोग तो पता नहीं यस कहाँ सर। पर बिजी हैं। सर ये जो टॉपिक है इसमें सर हम मतलब सर हमें ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन हमारे वैभव, नारायण, कृष्णा, एक सेकंड रुको ना बच्चों, ये चैटिंग थोड़ी सी बाद में कर लेना। तुम लोग के पास तो अपना ग्रुप है व्हाट्सएप और ये सब ग्रुप होगा ना तुम लोग का, तो जिसको कुछ चाहिए वो मेरे से भी पूछता है, ऐसा कुछ नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है। वैभव यस सर। ठीक है, तो नहीं सॉरी की कोई बात नहीं बच्चों, मतलब एक्चुअल में क्या होता है ना कि तुम लोग चैटिंग पे ध्यान नहीं लगते हो, सारा ये तुम ध्यान इधर दे ही नहीं रहे हो, ठीक है। ओके सर। यस सर, फिर डिस्टर्ब होते हैं सर। जो कुछ चाहिए तो मेरे से पूछ लेना, बता दूंगा किसका क्या, कौन सा चैनल क्या करना है, तुमको कैसे पढ़ना है, ठीक है। ओके सर। बट अभी फिलहाल ठीक है। सर क्या?
फिलहाल अभी इस पे फोकस करो, बाकी के बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, चलिए। हाँ यस बेटा, सर। नारायण एक बार फिर से शुरू करो बच्चा। यस सर। सर हमने अभी इतना कुछ पढ़ा, तो सर इससे हमें तो पता ये नहीं चलता कि हमारा इंडिया का जो इलेक्शन है वो सर डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। अब सर हमें ये जानना है कि वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं। इसके लिए सर हमें उसके लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस को देखना पड़ेगा। सर ये दोनों जो इलेक्शन है ये 5 साल में हर बार होते हैं। सर ये हमने पढ़ा था कि मतलब सर रिपीटेड टाइम इलेक्शन होने चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन, मतलब सर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन में। सर किसी कुछ टाइम बाद सर इलेक्शंस होने चाहिए। तो सर इंडिया में यही 5 साल बाद होते हैं। तो सर लोकसभा और विधानसभा ये दोनों बच्चा आवाज मुझे नहीं आ रही है, तुम लोग को भी नहीं आ रही है? सर म्यूट है। सर नेटवर्क इशू था सर, बीच में अचानक से माइक म्यूट हो गया। यस सर। सर अच्छा हमारे चलो में करो। सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होते हैं उसमें इलेक्शन सेम टाइम पे होते हैं, या सेम डे पे, या फिर सर 1-2 दिन बाद भी हो सकते हैं, जिसको हम बाई इलेक्शन कहते हैं। मतलब सर अगर लेट हो गया तो बाई इलेक्शंस करवाते हैं। और सर मतलब अगर किसी कहीं इलेक्शंस हो गए और जो इलेक्टेड मेंबर है सर उसकी या तो डेड हो गई या उसने रिजाइन कर दिया, तो सर वहां पे वापस इलेक्शन होते हैं ताकि मतलब दूसरा लीडर चुना जाए, और इस इलेक्शन को हम बाई इलेक्शन कहते हैं। तो सर हम इस चैप्टर में मतलब जनरल इलेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, बाई इलेक्शन उतना हमारा मेन टॉपिक नहीं है। सर तो हमने अभी पढ़ा था कि हरियाणा में 90 एमएलए इलेक्ट हुए थे। सर तो हम ये सोच सकते हैं कि हरियाणा में मतलब सबने 90 एमएलए को ही वोट किया था, 90 एमएलए को ही वोट किया था। लेकिन सर हमें पता है कि ऐसा नहीं होता। हमारी कंट्री में एरिया बेस्ड सिस्टम है सर, मतलब हर एक एरिया में किसी एक को चुना जाएगा। और फिर सर हरियाणा में 90 विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं सर, उसमें से मतलब अलग अलग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 90 एमएलए चुने जाएंगे। सर तो कंट्री जो है हमारा वो मतलब इलेक्शंस के लिए डिवाइड किया गया है सर, जिसमें हमारे लोकसभा के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो ज्यादा बड़े होते हैं विधानसभा से। और सर पॉपुलेशन भी सेम ही होते हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, क्योंकि सर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन जो है सर वो डिस्टर्ब ना हो इसके कारण। क्योंकि सर अगर किसी यस सर। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ज्यादा लोग हो गए तो उस वहां के लीडर के पास मतलब सर ज्यादा चांसेस हैं कि वो जीत जाए, इसलिए सर सेम रखा जाता है। और सर इंडिया में टोटल लोकसभा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो 543 है, जिसमें सर वो डिवाइडेड भी हैं कई सारे एससी रिजर्व्ड एससी एसटी के लिए, और जनरल के लिए 412 है शायद सर, उसी के अराउंड है। और एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 है। और और सर फीमेल के लिए भी? यस सर, फीमेल के लिए भी अलग से डिवाइडेड है। और सर जो विधानसभा है मतलब सर यस सर, विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है सर वो तो बहुत सारे नंबर में है, तो सर एग्जैक्ट तो नहीं पता सर, लेकिन शायद से उसका मतलब सर हरियाणा में 90 है और यूपी में ही मतलब सर 500 प्लस है सर, सिर्फ यूपी में ही विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होती है बेटा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्टेट एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। यस सर। तो सर वही राइट, मतलब अगर सर जैसे यूपी में 550 के आसपास हैं, वहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी दिल्ली में 70 है। ठीक है। यस सर, दिल्ली में कम है सर। हाँ, तो इस तरह से वो अलग अलग चलता है। और सर जो चलिए आगे बढ़िए। हर स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड है, जिसे हम विधानसभा इलेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो सर इससे जो इलेक्ट होते हैं सर उन्हें हम एमएलए कहते हैं, और सर जो लोकसभा से इलेक्ट होते हैं उन्हें हम एमपी कहते हैं। फुल फॉर्म क्या है बच्चा? सर एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, लेकिन अब एक बात इसमें ध्यान रखेंगे बच्चों कि पार्लियामेंट के दो सदन हमने पढ़े थे, एक हाई और एक लो, एक राज्यसभा एक लोकसभा।
दोनों के ही मेंबर क्या कहलाते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राइट, चाहे पार्लियामेंट, वो सर। लोकसभा के थ्रू ज्वाइन हो या फिर राज्यसभा के थ्रू। लेकिन स्टेट असेंबली में अगर हम देखेंगे तो अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो एमएलए होगा, अगर असेंबली के यानी विधानसभा के अगर हैं तो एमएलए कहलाएंगे, और अगर विधान परिषद के हैं तो एमएलसी कहलाएंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ओके सर। और हर स्टेट में ये एमएलसी है भी नहीं। ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं जहां पर विधान परिषद है, ठीक है, जहां पर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हुए। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़िए। और सर ये जो हमने अभी फॉर्म पढ़ा कि सर डिवाइडेड है, ये सेम टू सेम पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए भी होते हैं सर, जिसमें डिवाइडेड मतलब सर वो रिजर्व भी होते हैं कई सारे वुमेन्स और SC ST के लिए सर। उसका मतलब सर 1/3 शायद से वुमेन्स के लिए ही होता है और बाकी में SC ST और जनरल भी आते हैं। और सर इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसको सर हम वार्ड कहते हैं, क्योंकि सर ये स्मॉलर है और बाकियों से मतलब बहुत साइज में बहुत स्मॉलर है, इसलिए सर इसका डिफरेंट नेम है, इसको हम वार्ड्स कहते हैं। और ये भी सर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरह ही होता है, इसमें भी एक मेंबर इलेक्ट होता है और वही वहां से मतलब लीडर होता है उन सब लोगों का उस वार्ड का। और सर अब हमने सब कुछ पढ़ लिया तो हमें सर अब ये कंफर्म हो गया है कि जो हमने पहले पढ़ा था कि लोकदल ने 60 सीट्स जीती हरियाणा में, इसका मतलब सर 90 में से 60 जीती, इसका मतलब 90 एमएलएज में से 60 एमएलएज उन्हीं मतलब लोकदल के पार्टी के ही होंगे और बाकी 30 डिफरेंट पार्टीज के लिए होंगे। और उसमें दोनों तरह की पार्टीज हो सकती हैं, चाहे वो सपोर्टर ऑफ लोकदल हो या फिर अपोजिशन ऑफ लोकदल। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। नाउ जिसकी बात अभी नारायण ने की कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, तो वो क्या होती हैं एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो किससे पढ़वाया जाए, कौन बच्चा पढ़ना चाहेगा? समय है। जैद ने तो पढ़ दिया, कृष्णा अभी तुमको दोबारा में चांस देंगे, भी रुक जाओ। सर और कोई मैंने बच्चा तो पढ़ना चाहेगा? सर लव्य ने कहा था अभी रीडिंग करने के लिए। हाँ, लव्य को भी सर चांस मेरा देते हैं। नेट ये नहीं चल रहा अभी। सौभाग्य कुछ ये क्या नाम है इस बच्ची का, मोक्षिका कुछ पूछ रही है, एक सेकंड। सर मैंने कहा मेरा नेट ठीक चल रहा क्या लव कर? हाँ ठीक है समझ गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब बता दीजिए सर प्लीज, समवन आस्क। ओके, अच्छा देखो मोक्षिका क्या होता है ना कि जैसे पार्लियामेंट है ना, इंडिया का जो कंट्री है उसका एक पार्लियामेंट है जिसमें 2 सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, ये पता है ना तुमको? यस सर। तो जैसे वहां पर 2 सदन है वैसे ही स्टेट्स में भी 2 सदन होते हैं, बड़े स्टेट्स में, छोटों में नहीं होते, बड़े में होते हैं। ठीक है, जैसे यूपी हो गया, बड़ा स्टेट है, ठीक है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है और एरिया वाइज भी अच्छा खासा है। तो वहां पर जैसे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं पार्लियामेंट में, यहां पर भी विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। लोकसभा का छोटा रूप होता है विधानसभा और राज्यसभा का छोटा रूप होता है विधान परिषद। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। सौभाग्य से तो पूछ लिए, मोक्षिका से तो पूछ लूं, किसने क्वेश्चन पूछा है? मोक्षिका आंसर। सही है सर, लिखा सर एक बार और। ओके, देखो लोकसभा और राज्यसभा तो तुमको पता है ना, लोकसभा क्या होता है राज्यसभा क्या होता है? ठीक है, लोकसभा में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है और वहां पर लोग चुन लिए जाते हैं, उन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है,
राज्यसभा में क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहां तक तो क्लियर है, नॉमिनेशन के थ्रू होता है, ठीक है। वैसे ही उसी के जैसा उन्होंने क्या किया, वो तो बड़े लेवल पे होता है जो नेशनल लेवल पे होता है। स्टेट लेवल पे क्या होता है, स्टेट लेवल पे भी वैसा ही होता है, बस उनके नाम बदल जाते हैं और वो साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे वहां पर लोकसभा होता है, वैसे स्टेट में विधानसभा होता है। मुख्यमंत्री के लिए वहां पर प्राइम मिनिस्टर के लिए लोकसभा होता है ना, यहां पर चीफ मिनिस्टर के लिए विधानसभा होता है। इतना क्लियर है यहां तक, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में। यहां तक क्लियर है? चलो, अब आती है बात एमएलसी की, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आती है। तो जैसे वहां पर राज्यसभा होती है ना बेटा, जिसमें हम लोग इनडायरेक्ट मिनिस्टर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, वैसे ही यहां पर भी स्टेट्स में क्या होता है, विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल इंग्लिश में, ठीक है। और उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को इनडायरेक्टली चुना जाता है, जैसे राज्यसभा को चुना जाता है। मतलब ये समझ लो कि राज्यसभा की छोटी बहन हो गई विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे लोकसभा की छोटी बहन हो गई विधानसभा, ऐसे ही राज्यसभा की छोटी बहन हो गई विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उसी के जो भी मेंबर होते हैं वो सब कहलाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं चुने जाते इलेक्शन के थ्रू, ये लोग इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इनडायरेक्ट जैसे राज्यसभा में होती है बेटा, नॉमिनेशन के थ्रू। किसी पार्टी के जितने जितने लोकसभा में जितने सदस्य होंगे उसको उतनी ही सीट अलॉट होती है और उसी के थ्रू वो इलेक्शन वहां पर जाते हैं। ऐसे जैसे राज्यसभा में होता है, सेम वैसे। सर मतलब जो स्टेट लेवल में विधानसभा वो सीएम के लिए होता है और विधान परिषद में ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हाँ, वो है तो वो भी राज्यसभा के लिए होती है उसको। और वहां पर क्या होता है, जैसे दोनों के जैसे मान लीजिए कोई एमएलसी कहते हैं या फिर सिर्फ विधान परिषद के मेंबर को एमएलसी कहते हैं? नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, विधानसभा के मेंबर को कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रखेंगे, परिषद को कहते हैं काउंसिल, सभा को कहते हैं असेंबली। सुबह सुबह स्कूल में होती है ना असेंबली, सर होती थी। हाँ मतलब अब तो नहीं होती है, लेकिन पहले तो होती थी ना। यस सर, क्लास से स्टार्ट हो गई। हाँ, तो बस वही सीन है। असेंबली हो गया कि भाई जहां पर पूरा सभा टाइप रहती है एक, तो विधानसभा होगी जो कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाता है जिनको, और जिनको इनडायरेक्टली मौका मिलता है वहां पर जाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट में। जो लोग मान लीजिए वहां इलेक्शन नहीं जीत पाते, लड़के वो हार गए, तो वो कैसे करेंगे, तो वो एमएलसी बन जाते हैं, एमएलए की जगह एमएलसी। मतलब उनकी पार्टी उनको अगर मौका देती है तो वो कहती है कि ठीक है भैया जाओ, हमारे पास इतनी सीट्स हैं, तो आप 5 सीट है तो आप 5 लोग एमएलसी बन जाइए, और एमएलसी बन के आप सरकार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, बजट केंद्रीय मंत्री, और अपने जो भी जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सबको उनको अलर्ट किया जा सकता है। सेम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा लोकसभा और राज्यसभा का होता है, बिल्कुल सेम। हाँ बेटा, वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं, जैसे राज्यसभा करती है वैसे ही बिल्कुल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है ना, अपना कोई भी बिल होता है वो। सेम स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, एमएलए होते हैं, वो लोग पास करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से, विधानसभा से, कहां जाता है वो, विधान परिषद में, और उसका लास्ट में राज्यपाल उसको वो करते हैं नोटिफाइड। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बाबू। सर मेरा इससे थोड़ा अलग डाउट है सर, कि सर अगर हमने जैसे हरियाणा का एग्जांपल देखा, तो सर अगर उसमें ऐसा होता है कि सर कुछ एमएलए रिजाइन कर देते हैं, और सर जो लोक दल ने बनाई होती है, गवर्नमेंट फॉर्म की होती है, वो अब नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास मेजोरिटी नहीं है, और कोई भी पार्टी ऐसे मेजोरिटी फॉर्म नहीं कर पाती, तो सर फिर गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा? हाँ चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो हम इसे आने वाला था ये थोड़ी देर बाद, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम समझाता है इसको। छोटा सा ऐसे ही समझा देता हूं कि अगर मान लीजिए 100 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, और 100 में से जीतने के लिए पार्टी को अपना सीएम या पीएम बनाने के लिए 50+1 चाहिए होता है ना, 50% +1। यस सर। यस सर।
तो वैसे ही वहां पर मान लीजिए 50, किसी के भी 50 नहीं आई, तो क्या करेंगे, 2-3 पार्टी अलग अलग मिलकर के बनाएंगे, जिसे कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर सर फिर कोई भी नहीं बन बनाना पा नहीं रहा है चाहे। तो फिर, हाँ मैं वही बोला, अगर फिर भी नहीं बन रहा है, कोई कोएलिशन नहीं कर रहा है, तो जैसे वहां पर प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है, वैसे यहाँ पर राज्यपाल का रूल लग जाता है, गवर्नर का रूल लग जाता है, स्टेट में गवर्नर्स रूल। ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूं आप लोग को, इतना थोड़ा सा समझो कि जैसे सेंटर में यानी देश में या केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल वैसे ही उसी की रेप्लिका छोटी सी, थोड़ी ज्यादा छोटी, मतलब इतनी छोटी भी नहीं है, वर्किंग है, फंक्शनिंग रेप्लिका है जो स्टेट में काम करती है, वो है विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, राज्यपाल। तो लोकसभा की जगह तो हो गया विधानसभा, राज्यसभा की जगह हो गया विधान परिषद या फिर एमएलए जो सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल, और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की जगह हो गया गवर्नर। समझ में आ गया? सब बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। सर यस सर, समझ सर गया। कल मैं न्यूज़ देख रहा था सर, तो उसमें ऐसी कोई न्यूज़ थी सर कि इंडिया में ही सर कहीं की स्टेट का फ्लोर टेस्ट हुआ था सर, तो सर वहां पे केरल सर सरकार नहीं बना पाए वो, और सर जो अपोजिशन है सर वो भी नहीं बनाना चाहती है, पर सर जो पहले रूल कर रहे थे सर वो भी अभी रूल कर रहे हैं, तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? पर ऐसे मेजोरिटी नहीं किसी के होगा, पास नहीं है। वो मैं बताता रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि वो उसको मौका दिया जाता है कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दें, समय मिलता है ना, 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का, डिपेंड करता है कि वहां के जो गवर्नर है वो कितना टाइम दे रहे हैं उसको। सर आया जो समझ फ्लोर में? टेस्ट होता है उसके बाद में मिलेगा? नहीं, फ्लोर टेस्ट के बाद नहीं मिलता, फ्लोर टेस्ट अभी हुआ कहाँ है? सर कल ही तो हुआ था। और अगर सर फ्लोर, कल मेरे को रिजल्ट, बेटा कंफर्म नहीं है, कल से क्या, मैं 3-4 दिन से आउट ऑफ ये न्यूज एंड एवरीथिंग हूँ, ना मैंने पेपर पढ़ा है 3-4 दिन से, और ना ही मैंने ये टीवी देखा है, न्यूज चैनल्स। तो मैं कंफर्म करके एक बार तुमको बताऊंगा कि क्या स्थिति है। हाँ, इतना मुझे कंफर्म है कि अगर एक बार फ्लोर टेस्ट हो जाएगा तो फिर आपको गवर्नमेंट आपकी, अगर नहीं आपके पास मेजोरिटी है तो आप गवर्नमेंट को फंक्शन नहीं कर सकते, आपको तुरंत जाना पड़ेगा राज्यपाल के पास, फिर राज्यपाल ही आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। ओके सर। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा कि क्या स्थिति है। हाँ, इतना मैंने जरूर सुना था, ट्विटर पे या पता नहीं कहाँ पे देखा था कि एक गवर्नमेंट जो है कांग्रेस की वो गिर गई है एक स्टेट सर में, वो यस पुडुचेरी सर में गिर वही गई हुआ है। है। पुडुचेरी में, यस पुडुचेरी में, एग्जैक्टली। तो खैर वहां पर तो ये भी नहीं है, विधान परिषद तो है नहीं वहां पर, वहां तो सिर्फ विधानसभा ही है। यस सर, पुडुचेरी बहुत छोटी राज्य है। सर दिल्ली में विधान परिषद है ना? नहीं, सर 6 स्टेट्स में बस। बड़े स्टेट्स में होती बेटा, छोटे स्टेट्स में नहीं होती। सर विधानसभा मतलब तभी तो वहां पर गवर्नर भी नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। एलजी बोलता हुआ आपने देखा होगा केजरीवाल जी को अक्सर, कि हमें एलजी यस काम सर। नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं, पेपर में पढ़ा होगा आपने 2-3 जगह, कई बार ऐसा होता है। बेटा फ्लोर टेस्ट नहीं होता, फ्लोर टेस्ट होता है, फ्लोर होता है ना, फ्लोर टेस्ट क्या होता है कि हर एक जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उनको बुलाया जाता है सबको कि भैया आप आइए और वोट कीजिए कि कौन इस पार्टी को समर्थन दे रहा है कि ये सरकार बनाए और कौन इसके अगेंस्ट है। तो उसमें होता है, वहां पर वोटिंग होती है, जितने भी एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, वो अपनी वोटिंग करते हैं, और अगर उस पार्टी के पास 50+1 सीट्स हो जाती है तो वो वहां कर वो उसका फ्लोर टेस्ट में पास हो जाती है और उसकी गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है। और अगर वो वहां 50+1 नहीं कर पाते हैं तो वहां से वो गवर्नमेंट गिर जाती है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा था, मैंने आपको बताया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ऐसा ही तो हुआ था, 13 दिन के गवर्नमेंट बनाई थी उन्होंने। यस सर। ठीक है, Yes. 13 डेज की गवर्नमेंट बनाने का जो गिर गई। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऑपोजिशन भी वोट कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अगर क्या पता उनकी ओपोजिशन कर दे तो वो उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी, हाँ बिल्कुल बन जाएगी। पर लेकिन प्रॉब्लम पर है क्या होगी फिर उससे, प्रॉब्लम ये हो जाएगी बेटा कि मान लीजिए मैं किसी और पार्टी में हूं जो ऑपोजिशन में है और मैंने वोट कर दिया उस गवर्नमेंट के लिए,
तो मुझे अपनी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और जैसे ही मैं पार्टी से निकल जाऊंगा, मैं अगर मुझे पार्टी निकाल देती है अपनी उससे, या तो मुझे रीजन बताया जाएगा, भाई मुझसे कहा जाएगा बताओ आपने उस पार्टी को क्यों वोट दिया, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझसे गलती से दब गया था, या मैंने मुझे अच्छा लगता है वो गवर्नमेंट, तो उन्हें कह देगा ठीक है तुम्हें अच्छी लगती है तुम जाओ वहां पर, छोड़ दो हमको। तो अगर मैं रिजाइन कर देता हूं, तो जैसे ही मैं रिजाइन करूंगा उस पार्टी से, सेम डे सेम टाइम पर मुझे मेरी मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट भी या मेंबरशिप ऑफ असेंबली भी तुरंत हट जाएगी, तुरंत। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मुझे वो पार्टी निकाल देती है कि भाई मेरी पार्टी ने मुझे निकाल दिया, तो मेरी मेंबरशिप नहीं जाएगी, तो उस केस में मैं वहां पर निर्दलीय टाइप से जाकर के उसको सपोर्ट कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। सर तो मतलब एक तरीके से अपोजिशन को वोट कर सकते हैं सर, बट बाद में वो निकाल भी सकते हैं अपनी पार्टी से फिर, पर मेंबर तो रहेंगे यार। सिंपल सा लॉजिक है, अगर कांग्रेस की पार्टी वाले बीजेपी को वोट कर देंगे कि भैया ठीक है आपकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, तो कांग्रेस वाले क्या करेंगे, कहेंगे ना कि भाई बताओ क्यों करा तुमने ऐसा, ये कहेंगे ना। यस यस। अगर तुमने ये कह दिया कि ठीक है सर गलती से हो गया मुझसे, तो ठीक है भैया रीफ्लोर टेस्ट करवाया जाएगा, या फिर इन्होंने गलती से कर दिया आपको एफिडेविट देना पड़ेगा हमसे गलती से बटन दब गया था, पूरा प्रोसेस है उसका एक अलग। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि भैया मुझे तो अच्छी लगती है वो गवर्नमेंट, तो कहते ठीक है फिर दफा हो यहाँ से, उधर ही निकलो, यहाँ कर रहे हो। और जैसे ही मैं उस पार्टी को छोड़ूंगा मेरी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर वो पार्टी मुझे निकाल देती है तो मेरी मेंबरशिप कैंसिल नहीं होगी, ये बात तुम ध्यान रखना। ठीक है सर तो फिर अगर वो चालाक निकला और सर वो खुद लीव नहीं करता है सर, उनके निकालने का वेट करता है, मुझे निकालो सर वो बोले, या फिर मैं ऐसे ही रहूंगा क्योंकि मुझे अपनी मेंबरशिप नहीं खोनी। हाँ, तो उसके ऊपर वो होगा, क्या कहते हैं, पार्टी के जो भी उनके रूल्स होंगे उसके खिलाफ उसके वो होगा, एक्शन लिया जाएगा जैसा भी सीन होगा। ओके सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है, टाइम भी हो गया। ठीक है, गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड नाइट सर, बाय सर, Good night, sir. थैंक यू Bye, sir. बाय एवरीवन।